हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है, inventions and technological change during this industrial revolution. There is a important point here. The many invention and inventations had a technological change took place during this period. There is an important period of time here that our technological changing took place and during this period, and it helped to make their industrialized country is a more powerful and efficient. That is important. Industrialization countries are more powerful and efficient. Now production could be done a much faster and the larger quantities, which made things cheaper. This invention had a maximum impact on the textile and transport industry, which you are going to be read now. That is important. The next is textile industry. There is important textile industry. Technological advancement in the textile industry started a series of inventions in iron and steel production. There is important here. Technological advancement in the textile industry started a series of inventions in the iron and steel production. Other countries were inspired to follow their example of their England, and manufacture of goods from England were flooding their world market. To safeguard their interests, and Britain passed law to be a ban textile worker for linking out the information about the industrial technology or to travel to other country. But in 1789, Samuel's letter slapping of England to America. There is a time of French Revolution, 1789. Samuel Seltzer is slapping out their England to be America. He took the knowledge of British as a textile industry, which is initiated the industrial revolution in America. The vast new is area were about under to cotton plantations in America, which is increasing the demand for slabs. Similarly, incident started an industrial revolution in France and Germany also. There is an incident of industrial revolution, France and Germany here. Do you know that Arkwright to be called the father of the factory system? Arkwright was called the father of factory system. He is created the first factory that was especially built to be house machinery, and where is the working hours were fixed and the people were employed rather than to keep on a contractual basis.
is a contractual basis is a 70, 79. There are Samus, Crumbs, and then went to the spinning mill. Crumpton, there is a invented here, a spinning mill, and well there in Mon, Cataracts also made the first water-driven power looms. The textile industry stimulated other industries such as the dyeing, bleaching, and printing. There is a most important. You know that there is a UPC examination question here. Who is the call to the father of factory of system? There is a father of factory systems called Arkwright is called here. And there is a first system and established of 1779 are the spinning mills, and there is a Immonred Craft Right. There is a most important question for the exam view. The innovation, a technology change which lead to be advancement in a manufacturing, transport and communication industries follow closely with the chemical, electrical, petroleum and steel industry. The discovery of trade routes not only give a boost of industrial evolution but also lead to be a competition among the colonial and imperialist power. They're expanding their empire to fulfill their need of industry for raw materials and new market and cheap labor. The imperialist is expansion lead to a struggle for the supremacy and the two world wars. There is a two world war discussion for the next topic over. The colonies were exported is their traditional social, economic and political system were destroyed. There is important. The colonial were exported. Their traditional and social, economic and political system were destroyed. And they started to posing there is a foreign rule and to be established their own nation. That is important. The next point here is steam engine. Steam engines are most important for the evolution of there is a industry. Another major achievement of industrial evolutions was the development and application of steam power. Even the earlier device is very improved upon and the development into machines as the number of industry had increased. So importance is the power was needed for a production. In 1705, Thomas Newcomen built an engine for pumping water from a coal mine. And in 1764, James Watt improved upon the design and improved the efficiency of Newcomen's as an engine for fault. He introduced a chamber with a jar of cold water to condense the steam and cause the vacuum. The cause of vacuum. And this was also a period of transfer of one technology to another. What user Jones Williamson is a drinks gun to be boarded to the large cylinder for this engine. The steam engine soon replaced the earlier is a locomotive's coal engine. It is increasing the demand for the railway line. The steam engine made technology portable and was the demanded by the other industries. Now there was no need to be a localize their factories along the river or lakes any longer. The next year, coal and iron. Coal and iron, there is the most important here. The steam engine, coal and iron is related to the foundation for a modern industry. It was the belief that only people with a death wish and working in a mine. The coal was moved along the horizontal tunnel in their baskets and then the hauled as up vertically sharp to be a surface. The movement of coal from mine was totally dependent on the muscle power of animal. There is a important here. The movement of coal from mine was totally dependent on the muscle power of animals, man, women and children. The coal mine had a dangerous working condition. Unfortunately, their children were preferred to because of their small size. The demand for coal went up with the increasing in the use of steam power, and great progress was made in the coal mining, such as a tunnel,
ventilations and transportation of coal and use of gunpowder to a blast away arises and the use of safety lamps. But the coal miner suffering from a many health and the health problem like a lung disease. There is a causing of lung disease. There is a working for the coal mine. Significant improvements were made in the iron industry during this time. In 1709, the Abraham Barnes produced a pig iron smeltery with the coke. There is a Abraham is a Darby is produced a pig iron smeltery with the coke. And any pig iron was melted with the charcoal which was derived from a woods and which resulting in a fast depletions of the England as a forest. In 1784, Henry Cole and the Iron Master developed a process for producing a less brittle iron. It was called Bought iron. Bronze iron and is proved to be a very useful to metal in industry process. In 1774, John Wilkinson invented a drilling machines that could be drill a hole with a great accuracy. There is John Wilkinson invented a drilling machine and could be drilling hole with a great accuracy. Between 1788 and 1806, the production of iron increased many times and the use of iron spread to form of machineries, hardware, as for lighting, the building, there is important of etc. The development in the iron and the textile industry made it a necessity to invent better transportation facility for a cheaper and quicker movement of goods. It was urgently required to fulfill their need of the domestic and foreign markets. The next year, mean of transportation and communication. There is a most important achievement on this period time. The improvement in the means of transport and communication was a great encouragement to the industrial revolution. The raw material, finished product, food and people need a reliable system of transportation. And improvements in the bridge and road construction were made earlier in the 70s centuries. And they helped to be transport the raw materials and factory made a product to be their destination. In 1814, George Stephenson is built their first steam locomotive engine to run on railway track. There is the most important year, 1814. There is a George Stephenson is built the first steam locomotives engine to run a railway track. And soon the steam engine is a railway where transporting goods over track and throughout there is England and supporting the canal transportation. And there is so the first is a steam engine on the railway track. Comes let see the tracks on railway. In this picture, there is George Stephenson as a rocket. There is a rocket is 1829. There is a first of steam engine on the track. There is the most important diagram on this period time here. During the mid-19th century, a wooden steam-powered ship took over to sailing ship, and soon after iron ships was used for traveling across the ocean. If the first phase of the Industrial Revolution depended on the steam, then the second phase of depended on the electricity. This is important, and you know, Michael Faraday had a distinction or inventing their first electrical motor. The Faraday's there is an important invention of the electrical motor, and the electricity now become a commercially available and was used to be run the factories. The faster means of transportation of communication is speeding up to the business and transactions and control between army unit, colonies, countries and even common people. The invention of the telegraph and telephone made it possible to communicate
anywhere in the world instantly. That is the most important invention on this period time. यहाँ पर देखा जाए जो अगला टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट जो है उद्योग के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कहते हैं यहाँ पर जो पहला आया है अगला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और औद्योगिक परिवर्तन। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और औद्योगिक परिवर्तन क्या थे और किस प्रकार के थे। कई नवीन आविष्कार और औद्योगिक परिवर्तन के इन अवधि के दौरान जगह ले ली। यानी देखा जाए तो नवीन आविष्कार ने औद्योगिक परिवर्तन के इस अवधि के दौरान अपनी जगह ले ली और उसने औद्योगिक देशों और अधिक शक्तिशाली और कुशल बनाने में काफ़ी मदद किया। कहते हैं देश की प्रगति में इसका जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ था औद्योगिक क्रांति की। अब उत्पादन बड़ी मात्रा में और सस्ता और बहुत तेज़ी से किया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास जो थी तरह तरह के मशीन आ गई थी, तो ये सस्ता और बहुत तेज़ी से किए जाने वाले माध्यम बन गए। और इन आविष्कारों का जो है कपड़ा और परिवहन उद्योग में बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा टॉपिक क्या है। देखिए पहला टॉपिक के रूप में तो यही आया है वस्त्र उद्योग। कहते हैं वस्त्र उद्योग जो था, कपड़ा उद्योगों में तकनीकी प्रगति ने लोहा और इस्पात उत्पादन में आविष्कारों को एक श्रृंखला शुरू कर दी। अन्य देशों ने इंग्लैंड के उस उदाहरण से प्रेरणा ली जिसमें इंग्लैंड ने निर्मित वस्तुएं कि दुनिया के बाज़ारों में जो है बढ़ गई। यानी देखा जाए तो इंग्लैंड में बने वस्तुओं की मांग पूरे विश्व में जो है काफ़ी मांग बढ़ गई और ब्रिटेन ने अपने हितों की रक्षा के लिए एक कानून पारित कर लिया जिसमें कपड़ा मजदूरों को दूसरे देशों को यात्रा करने और औद्योगिक तकनीक की जानकारी बाहर न खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम दूसरे देशों से साझा नहीं करेंगे। ये इंग्लैंड के जो है कानून में पारित कर दी गई कि जो हम मशीन को जो इन्वेंशन किए हैं वो किसी दूसरे देश से हम साझा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दूसरे देशों से साझा कर लेंगे तो वो भी जो है विकसित बन जाएंगे। ये इंग्लैंड का जो है विचारधारा थी उस समय। परंतु देखा जाए तो 1789 में जब फ्रांस क्रांति हुई थी में जो है सैमुअल सेल्टर इंग्लैंड से बाहर निकलकर अमेरिका पहुंचा और वह अपने साथ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का ज्ञान ले गया, जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्रांति आरंभ हो गई। तो कहते हैं इंग्लैंड जो सोचता था उसे जो है बिल्कुल उलट सैमुअल सेल्टर्स ने कर दिखाया और अपने साथ जो कपड़ा बनाने का जो ज्ञान लेके गया, इसके कारण अमेरिका में जो है औद्योगिक क्रांति आ गई और अमेरिका में कपास वृक्षारोपण के लिए जो है विशाल क्षेत्रों को दासों की बढ़ती भाग के तहत लाया गया। यानी जो है दास दूसरे देशों से लाया गया और जो है कपास के वृक्ष लगाए गए। फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति सामान्य घटना से शुरू हुई। देखिए फ्रांस और जर्मनी भी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। क्या आप जानते हैं कि आर्कराइट कारखाने प्रणाली का पिता कहा जाता था? आर्कराइट कारखानों की प्रणाली का पिता कहलाते थे और ये कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारखानों की जो है पिता किसे कहते हैं, तो आर्कराइट को। और देखा जाए तो अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का किसको श्रेय जाता है? सैमुअल सेल्टर को। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू के रूप में होते हैं, लेकिन आप जो है चैप्टर का अध्ययन नहीं करते हो, इसकी वजह से आप अधूरे रह जाते हो और आप लोग वही क्वेश्चन रटते रहते हो जो कोई वीडियो में होती है, कुछ में दिखाए जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन सोचते हो कि मैं इतना कर लूँगा तो मैं पूरा तीर मार लूँगा। दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको सही ज्ञान प्राप्त करना है तो आप सिलेबस और किताब को अध्ययन कीजिए, उसमें बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। कहते हैं कुछ एमसीक्यू जो होते हैं वो लोग सिंपली दिखा देते हैं और उनका आंसर तो उनको पहले ही पता होता है और आप जो उसी क्वेश्चन एमसीक्यू में खुश हो जाते हो कि हम तो पूरे आप तीर मार के आएंगे, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हो पाता। कारण क्या है? आपके पास जो है सही ज्ञान का मार्गदर्शन की कमी है। आप चैप्टरों के अध्ययन नहीं करते हो। चैप्टर के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। एग्जामों में इतने सारे टेस्ट एग्जाम होते हैं, सब में जो है एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन को उठाते हैं जो आप पहली बार देख रहे होते हो और आपको पहली बार इसलिए लग रहा होता है कि इससे पहले कभी डिस्कस भी नहीं किए होते क्वेश्चन पे। तो इसलिए त्रिपाठी असिस्टेंट हमेशा कहता है ना कि आपको अध्ययन जो है अंदर से अच्छे से करने की आवश्यकता है। तो यही बात यहाँ पर हुआ। देखिए इसमें सैमुअल स्लेटर ने जो है
इंग्लैंड में जो है मशीनों के बारे में समझा जाना और अमेरिका में लाकर उसने औद्योगिक क्रांति कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। कहते हैं कि आप जानते हैं कि आर्कराइट भी कारखाने प्रणाली के पिता कहलाता था। उसे पहला कारखाना मुख्य रूप से घरेलू मशीनों से तैयार किया, जहां काम के घंटे तय थे और लोगों का वास्तव में अनुबंध के आधार पर रखा गया था। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के स्पिनिंग म्यूल की आविष्कार किया, जबकि जो है फ्रमंट करवाहट ने पहली पानी संचालित कारखाने का आविष्कार किया। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण थी ये बात। एडमंड कराइट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आविष्कार किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और कहते हैं उसके बाद नवोन्मेष और जो है औद्योगिक परिवर्तन से निर्माण, यानी नवोन्मेष और औद्योगिक जो है परिवर्तनों के निर्माण, परिवहन और संचार उद्योग तथा इसके निकट संबंध रखने वाले रसायन और इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम और स्टील उद्योगों में प्रगति करके ला दिया। और व्यापार मार्ग की खोज ने न सिर्फ औद्योगिक क्रांति को बल मिला, बल्कि इनसे कच्चे माल, नए बाजारों और सस्ते कारीगर हेतु उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्यों का विस्तार करने हेतु उपनिवेश और साम्राज्यवाद तत्कातों को जो है प्रतिशोध कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी औद्योगिक क्रांति। कहते हैं साम्राज्यवादी विस्तारों ने सर्वस्वता हेतु संघर्ष और द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। अब देखिए, संघर्षता हेतु राष्ट्र इसको कहते हैं साम्राज्यवादी के अंतर्गत दो युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं उपनिवेशों का शोषण किया गया और उनके जो परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया और उन्होंने अपने खुद के राष्ट्र की स्थापना करने और जो है विदेशी शासन का विरोध करना आरंभ कर दिया। तो कहते हैं विश्व युद्ध के कारण बहुत से बदलाव हो गए दुनिया में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भाप का इंजन। कहते हैं औद्योगिक क्रांति की एक और बड़ी उपलब्धि भाप की शक्ति विकास का और प्रयोग था, यानी भाप की शक्ति का विकास और प्रयोग था। पहले के उपकरणों का सुधार भी किया गया और मशीनों को विकसित रूप में उद्योगों की संख्या बढ़ गया था, इसलिए उत्पादन के लिए अधिक शक्ति की जरूरत थी। और 1705 में थॉमस न्यूकोमन कोयले खानों से पानी निकालने के लिए एक इंजन का निर्माण किया, जो कि 1761 में जेम्स वाट डिजाइन का जो है न्यूकोमन के इंजन के डिजाइन और दक्षता में चौगुना सुधार किया और उसे भाप और करण निर्बाध गढ़ा करने के लिए ठंडी पानी के एक जेट के साथ एक कक्ष की शुरुआत की। तो देखिए, इन्हीं कारणों से जो होता है इन सब चीज़ों का जो है विकास होता है। और ये भी एक दूसरे से प्रौद्योगिक और हस्तांतरण की अवधि थी, यानी ये भी प्रौद्योगिक और हस्तांतरण यानी इसको एक जगह दूसरे जाने की अवधि थी। वाट ने जॉन विल्कस की ड्रिल के जो है बंदूक के इस्तेमाल करने के लिए अपने इंजन के लिए बड़े ड्रिल बोर किया और भाप इंजन में ज़्यादा ही पहले जो है लोकोमोटिव कोयले इंजन की जगह ले ली और इससे रेलवे लाइनों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई और औद्योगिक में भाप इंजन का हल्का किया, जिससे अन्य उद्योग इसकी मांग बढ़ी। अब नदियां या किसी भी झीलों के साथ कारखानों का लगाने की शुरुआत नहीं थी उस समय, यानी उस समय देखा जाए तो कोई भी कारखाने को जो है किसी झील या नदियों के किनारे लगाने की उस समय ज़रूरत नहीं थी। देखा जाए तो अगला है कोयला और लोहा। कहते हैं कोयला और लोहा काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाप इंजन ने कोयला और लोहे के साथ आधुनिक उद्योग की नींव रखी। ये कोयला लोहा एक ऐसे मटेरियल थे जो आधुनिक युग के शुरुआत की एक वजह मानी जा सकती है और उनका यह मानना था कि जिन लोगों की मौत की इच्छा हो वही खान में काम कर सकते थे, क्योंकि ये वो जगह था जहाँ कहते मौत की संभावना बनी रहती थी। क्योंकि आपको पता है कोयला जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर जाकर छोड़ते तो जनरल सी बात है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है जहरीली गैस होती है, जिससे जो है लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए इन्होंने ये बात बोली कि जिन लोगों की मौत की इच्छा हो वही कारखाने में काम कर सकते थे। कोयला क्षैतिज सुरंगों के साथ टुकड़ियों में ले जाया गया था और फिर सीधा से जो है घसीट कर सतह तक लाया जाता था। खानों से कोयले का जो धकेलना जानवर, आदमी, औरत और बच्चे
जो ताकत पर पूरी तरह निर्भर होता, क्योंकि उस समय जानवर, आदमी, औरत और बच्चों से ही कार्य करवाया जाता था। कोयला खानों में काम करने की स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि जगह ही बहुत बहुत ही तंग होती थी। कहते दुर्भाग्य इस काम के लिए बच्चे को उनके छोटे आकार की वजह से पसंद किया जाता था, कि छोटे बच्चे होते थे वो कोई भी सुरंग में बहुत ही आसानी से चले जाते थे, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण इस काम के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था। कहते भाप शक्ति के उपयोग में वृद्धि के कारण कोयले की मांग बढ़ने लगी, कि जितना भाप का इंजन इस्तेमाल होने लगा उतना कोयले की मांग भी बढ़ने लगी। और कोयला खानों में कई सुधार किए गए, जैसे सुरंग की हवादार बनाया गया, विस्फोट के लिए बारूद का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कोयला खनिज कई तरह से खतरे और स्वास्थ्य समस्याएं और फेफड़ों की बीमारी से भरी हुई थी, इसलिए ये देखा जाए तो कोयला कई मायने में कई तरह की बीमारियों को कॉजिंग कर सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय में। लोहे उद्योग में इस समय के दौरान महत्वपूर्ण सुधार भी किए गए। कहते 1709 में इब्राहिम ड्रेविल कोक के साथ ढलवा लोहे का उत्पादन किया गया, और इससे पहले ढलवा लोहा लकड़ी के कोयले से प्राप्त किया जाता था, जिससे कि तेज़ी से इंग्लैंड के जंगलों में लकड़ी की कमी हुई। और जब देखा जाए तो 1784 में हेनरी कर्क, जो एक आयरन मास्टर थे, उन्होंने एक कम भंगुर लोहे के उत्पादन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की, और यह लोहे लवणहीज बुलाया गया था। और यह औद्योगिक प्रक्रिया में एक बहुत ही उपयोगी धातु साबित हुई। और 1774 में जॉन विल्मसन ने एक ड्रिलिंग मशीन का भी आविष्कार किया, जिससे सटीकता के साथ छेद किया जा सकता है। अब देखिए, ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन विल्मसन ने 1774 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है हर जगह। अब देखा जाए 1788 और 1806 के बीच लोहे का उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, और लोहे का उपयोग कृषि मशीनरी, हार्डवेयर, जहाज निर्माण और आदि में फैला दी गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लोहा और कपड़ा उद्योग के विकास में यह आवश्यक था कि सस्ती वस्तुएं और उनकी तेज़ी से ढुलाई के लिए बेहतर परिवहन सुविधाओं का आविष्कार किया जाए। घरेलू और विदेशी बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा जल्द से जल्द करना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात था परिवहन और संचार के साधन। देखिए, परिवहन और संचार के साधन काफ़ी महत्वपूर्ण साधन थे, क्योंकि इससे भी कहते हैं बहुत बड़ा विकास में महत्वपूर्ण हाथ था। परिवहन और संचार के साधनों में सुधार ने औद्योगिक क्रांति का बहुत प्रोत्साहित किया, और कच्चे माल तैयार उत्पादों को भोजन और लोगों को परिवहन का एक विश्वसनीय प्रणाली की जरूरत थी। 1700 में पुल और सड़क निर्माण में काफ़ी सुधार शुरू किए गए, और वो उनके गंतव्यों परिवहन से कच्चे और कारखानों में तैयार माल को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करते थे। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन पहले भाप लोकोमोटिव इंजन निर्माण किया, जो रेलवे ट्रैक पर चला। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन पहले भाप लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया, जो रेलवे पे चला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाप इंजन और रेलवे पटरियों में जल्दी इंग्लैंड में माल लाने ले जाने के लिए नहर परिवहन के समर्थन भी मिल गया। क्या आप जानते हैं कि डर्टिकर्टन और स्कॉटेंस के लिए पहली रेलवे लोकोमोटिव आकर्षण का उपयोग करने के लिए और यात्रियों के रूप में माल ले जाने के रूप में अच्छी तरह लाइन वर्ष 1825 में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं मध्य 19वीं शताब्दी के दौरान लकड़ी चलित जहाज की जगह अब भाप चलित जहाज ने ले लिया, क्योंकि अब जनरल सी बात है, जब नए नए आविष्कार होंगे तो नए नए सामग्री भी बनेंगे। तो वही बात यहाँ पर 19वीं शताब्दी में देखने को मिला, जहाँ पर लकड़ी चलित जहाज होती थी अब भाप चलित जहाज हो गई। इसके तुरंत बाद लोहा जहाज समुद्र के पार यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि लोहे से आप जहाज का निर्माण होने लगा। यद्यपि औद्योगिक क्रांति से पहले चरण में भाप पर निर्भर करता है, क्योंकि भाप काफ़ी महत्वपूर्ण थी औद्योगिक क्रांति के लिए। तो दूसरे चरण में बिजली पर भी निर्भर हो गया। एक तरफ भाप पे निर्भर थी, उसके बाद वो बिजली पर निर्भर हो गए। जैसे भारत में आपको पता है कि पहले कोयले पे गाड़ी चलता था, उसके बाद पेट्रोल पे हुई, अब बिजली पे चलने लग गई। तो समय के साथ बदलाव होना एक स्वाभाविक बात रहता है। क्या आप जानते हैं कि माइकल फैराडे ने पहली
इलेक्ट्रिकल मोटर की खोज करने का गौरव प्राप्त किया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको कई बार पूछा हो जाता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने किया था इलेक्ट्रिकल मोटर की खोज, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। बिजली अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गई थी और कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लग गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। परिवहन, व्यापारिक लेन देन और संचार के तेजी से मतलब है सैनिक इकाइयों की कॉलोनियाँ, देशों और जहाँ तक कि आम लोगों के बीच तेजी से संपर्क बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये कहते हैं परिवहन अगर बढ़ता है तो हर क्षेत्र में जो है संबंध स्थापित किया जा सकता है। टेलीग्राफ और टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया में कहीं भी तुरंत संवाद संभव बना दिया, तो ये भी आविष्कार काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के दौरान। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जॉर्ज स्टीफेंसन का स्टीम इंजन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, और उन्होंने कितना बखूबी बनाया और कितनी उन्हें समझ लगाई, वो इस चित्र में भी आपको दिख सकता है। कहते हैं ये पहला भाप इंजन था जिसको जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था और उन्होंने खुद इसको संचालित किया था, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इंजन थी जिसको रेलवे पटरी पर चलाया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों थी। कहते हैं ना, कोई चीज़ की आविष्कार ऐसे नहीं होता है, कहते हैं ज़रूरत ही हर चीज़ की जननी होती है, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता है तिरपान सेंटर ने बच्चों को इसलिए जो है यूट्यूब का माध्यम चुना क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे वो ज्ञान नहीं दिखता है, और बच्चे कहीं कहीं से पता नहीं कहाँ से जो है गलत इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं। इसलिए संभवतः मैंने हर संभव कोशिश किया है कि आपको किताब का ही ज्ञान हो और किताब के अक्षरों से ही आप जो है दो चार कर सके, क्योंकि अगर आपको बेशक अगर मैं सामने आकर समझाता हूं तो आपको बेशक समझ नहीं आएगा, लेकिन जब शब्दों का आपके आँख के समक्ष शब्द होगा तो बेखूबी उसको पढ़ भी सकते हो और जो बोला जाता है उसको समझ भी सकते हो। तो ये माध्यम काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए तिरपान सेंटर ने इस माध्यम को चुना। अगर आप भी तिरपान नेशनल सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, शेयर करके ही आप तिरपान नेशनल सेंटर को हेल्प कर सकते हो, और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा, जो बच्चे इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इवन कि आपको पता है कि तिरपान सेंटर सिर्फ इन्हीं क्लासों के लिए नहीं है, 8th क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों तक के हर एक बोर्ड का जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए? इसे सोचिए नहीं, विचारने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आपके मोबाइल में चैनल सेव होगा, और सेव होगा तभी जो है आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में अगर आप कुछ राय देना चाहते हो, कुछ विचार देना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो इसके लिए कमेंट की प्रावधान है, कमेंट अवश्य कीजिए।